Great. So the formula for simple interest, which we learned yesterday, simple interest is what? P into R into T upon 100, where P is what, beta? Principal Yes. amount. Principal amount. R and I normally, students as well as notebooks are used interchangeably. R is basically the rate of interest, but it has to be per annum. हमेशा ये एक प्रैक्टिस होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम कोट होता है. एग्जाम्पल है कि आप अगर 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट करने जाते हो, फिक्स डिपॉजिट बैंक में, एंड यू वांट टू कीप इट इन फिक्स डिपॉजिट ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो आप अगर उनको इंटरेस्ट पूछोगे कि भाई 6 मंथ्स रखना है, इंटरेस्ट कितना होगा बताइए, तो एग्जाम्पल वो ऐसे ही बताएंगे 10% पर एनम. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि भाई 12 महीने रखोगे अगर तो 10% मिलेगा. तो हमें ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि अच्छा ओके, तो 6 मंथ्स को अगर मैं रखूंगा तो मुझे 5% ही मिलेगा. सो बैंकर विल नेवर से 5% मिलेगा 6 मंथ्स का. कोई और बोल आता है, पूछता है 3 महीने के लिए एफडी रखना है, उसको भी जवाब वो ही देगा कि 10% पर एनम है. So unless otherwise specified, interest is always mentioned as per annum. पीछे per annum होना चाहिए. तो ये एक पॉइंट लिखो, that unless otherwise specified, rate of interest is per annum. So here what they are trying to say is for 12 month 10%. So if I'm going to keep it for 3 months only, effectively what I'm going to get is how much? 2.5%. Yes or no? So rate of interest कभी कभी R से डिनोट करते हैं, कभी कभी I से डिनोट करते हैं. Okay? And T is time period in years. T is time period in years. तो ये फॉर्मूला लिखो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का, और उसके 3-4 क्वेश्चंस हम करते हैं रैंडमली, और फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाएंगे. ओके, सो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर अनिल kept rupees 20,000 in a fixed deposit with State Bank of India for 3 years. Rate of interest is
12% per annum. Find total interest and B total amount received after 3 years. क्वेश्चन लिखो. ये एक्चुअली छोटे बच्चों का क्वेश्चन है कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into T upon 100. जैसे मैंने आपको कल बताया, हमें CA फाउंडेशन में मैथ ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ABCD में टिक करना है. इसका मतलब है कि जितना आप ओरली करोगे उतना अच्छा है, जितना आप फास्ट करोगे उतना अच्छा है. स्टेप्स लिखने के कोई मार्क्स नहीं है इसमें. ओके, सो प्रिंसिपल इज 20,000, rate of interest is 12, period is 3 upon 100 is equal to, कैलसी पे करके बताइए कितना होता है? 7,200. करेक्ट, रुपीज 7,200. वेरी गुड. This is interest of how many years? 3 years. Yes, sir. Yes. Now A is equal to P plus SI. So principal amount that we had invested is 20,000 plus interest is 7,200, which is 27,200. As an investor, I don't want to confuse you, but I want to bring clarity. As an investor, मैं ऐसी बैंक में पैसे नहीं जमा करूंगा. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कौन समझाएगा कि हाँ सर आप ऐसा इसलिए कह रहे हो? बैंक का रिटर्न बहुत कम होता है. ओके, ना, that is not what I meant. Somebody else? Let me put it differently. Yeah, कोई कुछ कहना चाहता है? So because हमें हमारा लास्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड पे ही मिलेगा. हम अगर बीच में चाहे लेना तो हमें नहीं मिल सकता. नहीं, बीच में चाहे तो मिल सकता है बेटा, बैंक में अगर रखा है तो. But they will, Sir, instead of promising, wait. Here they are offering 12%. This is actually a contract between you and State Bank. So they are offering you 12% provided you keep the money for 3 years. If you want money earlier than this, then you can get. It is your money. But they will not then give you 12%. They will charge some penalty and give you say 11% or maybe lesser than that. Depends on bank. तो पैसा तो मिलेगा पहले, पर कम मिलेगा बेटा. हाँ जी, कोई और कुछ कह रहा था? sir, the amount and the interest we get after each year, we can still add it to the principal amount and then calculate interest on that Right. amount. Right, Aditi? Perfectly right. The question which I asked was that if I am an investor, I will not invest in this bank. And why am I saying that is, यहाँ पे क्या किया हमने? यहाँ पे हमने ये बोला कि ये 27,200 हमें 3 साल के बाद मिलेगा. तो जो कल मैं समझा रहा था बेटा कि वो पहले साल का जो 2,400 इंटरेस्ट है, उस पे 2 साल का इंटरेस्ट तो मेरा लूज हो गया ना? हाँ या ना? The Yes, sir. first year interest is 2,400. They are not giving me anything on that.
second year interest is also 2400. They are smartly keeping with them. So I would not invest in such a scheme. ये मैथ्स का सवाल पूछने के लिए ठीक है भाई. आई विल रिपीट, मैथ का सवाल पूछने के लिए ठीक है, 3 साल बाद इतना पैसा मिलेगा. As an investor, I would not invest in this scheme because actually I am not getting 10%. वो पहले साल के दूसरे साल के इंटरेस्ट को अपने ही पास रख रहे हैं, तो मैं उनसे कंपाउंड इंटरेस्ट मांगूंगा एज एन इन्वेस्टर. ओके, आई विल रिपीट, as a math question this answer is right, but this doesn't gel with practical life. Are you understanding what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. अभी एक सवाल आपके लिए, इसी क्वेश्चन का ऑफशूट है. सेकेंड, व्हाट वुड बी योर आंसर? लिखो, व्हाट वुड बी योर आंसर. आगे लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं. इफ अमाउंट इज केप्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 6 months, 3.5 years and 5.5 years, ये 3 कैलकुलेट करो और तीनों के आंसर साथ में लिखना. चैट बॉक्स में कॉमा करके साथ में लिखिएगा. डोंट बी इन अ हरी टू राइट वन आंसर. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना. ये सेम क्वेश्चन है बेटा. ये 20,000 12%, सिर्फ पीरियड चेंज कर रहे हैं. पीरियड 6 months, 3.5 year, 5.5 year, 3 different scenarios. Okay, Sahil, I got your message. दक्ष, चेक कर तेरा आंसर.
हाँ सर। कथन का आंसर राइट है बेटा, स्नेही का भी राइट है। ओके, दिव्यांश का भी राइट है, बट दिव्यांश क्वेश्चन वाज इंटरेस्ट कितना है बेटा। क्रिश का भी राइट है, यशवी का भी राइट है। यशवी, क्वेश्चन था इंटरेस्ट कितना है, आपने बराबर गिना है। चलो वापस लिख के भेजो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। पर्व का राइट है, हेतवी का राइट है, यशवी का राइट है, ध्रुव कुछ गड़बड़ किया है। पहला फिगर इसने भी गड़बड़ किया, रुको एक मिनट। हेतवी, आई थिंक तूने फिगर लिखने में गड़बड़ किया है, चेक कर जरा। पहला फिगर रॉन्ग है तेरा। ध्रुव, पहला फिगर चेक कर। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है ध्रुव, पहला लास्ट। श्रेया, कुछ गड़बड़ है। अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। सर माय क्या नाम बेटा आपका? सर पल्लवी। पल्लवी, आई सेड राइट है ना? आई थिंक आई सेड नो। हाँ पल्लवी, तूने क्या किया मैंने नहीं समझा। ए और बी, राइट इट अगेन, तीनों साथ में लिख। आई एम नॉट क्लियर व्हाट यू आर राइटिंग। श्रिया मैडम रॉन्ग है। पलाश का भी रॉन्ग है। चलो सब लोग ध्यान दो इधर। अभी अभी मैं देखने वाला नहीं हूं। पल्लवी रॉन्ग है बेटा तेरा। So now I'm not going to have a look at your answers in the chat box. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। आई थिंक आहन ने लिखा ही नहीं आंसर। आहन लिखा क्या आंसर तूने? नहीं सर, मेरे को मालूम ही नहीं कौन सा सीन में बीच में लॉग आउट हो गया तो। ओके, सो द फर्स्ट केस इज व्हाट? फर्स्ट केस इज, देखो जितना कॉमन सेंस से करोगे ना उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो आई विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन। प्रिंसिपल इज 20,000, rate of interest is 12%। अब ए में हमने गिना था कि टर्म 3 इयर्स था, 3 इयर्स, टर्म 3 इयर्स था। तो मैं पहले अपने आप से हमेशा मैं क्या करता हूं, मैं पूछता हूं एक साल का कितना। ओके, 20,000 का 12%। इफ आई इन्वेस्ट इट फॉर 1 ईयर, हाउ मच विल आई गेट? 2,400। इतना क्लियर है? एक साल का। तो अभी पूछा है कि 6 महीने का कितना, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 6 मंथ्स का इसका हाफ होगा रे बाबा, 1200 मिलेगा इंटरेस्ट। एक साल में 2,400 मिल रहा है, तो 6 महीने में कितना मिलेगा? 1,200 मिलेगा। अच्छा, 3.5 ईयर में कितना मिलेगा? तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 2,400 इंटू 3, तो 7,200 तो 3 साल का हो गया। अच्छा, ऊपर से 6 महीने का 1,200, तो 8,400 मिलेगा। ये कुछ अलग अलग ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। फॉर्मूला से भी करेंगे रे बाबा, बट फॉर्मूला का मोहताज नहीं होना है हमको। अच्छा, तीसरे केस में कितने साल के लिए पूछा है? तीसरे केस में 5.5 ईयर्स के लिए पूछा है। तो अभी ये लॉजिक लगा के बताओ मेरे को कितना होगा तीसरे साल का?
12,000 5 साल का फिर 1200 13,200 13,200 सॉरी बेटा 13,200 13,200. सो पहले क्या करेंगे, 2,400 इंटू 5 ईयर्स कर देंगे, तो 5 ईयर्स 5 फुल ईयर्स में 12,000 मिलेगा, और एक हाफ ईयर है तो 13,200. कॉमन सेंस से आंसर आ रहा है हमको. अभी अगर फॉर्मूला यूज करना है PRT वाला, तो प्रिंसिपल है 10,000, ये ए के लिए कर रहा हूं, इंटू आर है 12. अब टी में गड़बड़ करेंगे आप लोग, तो ये फॉर्मूला ईयर के लिए है, पर अभी आप 6 महीने के लिए ही अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको 6/12 लिखना पड़ेगा. 6/12 सर प्रिंसिपल 20,000 है. 20,000 है. ओके, ये 6/12 क्यों लिखा मालूम है? लेट मी राइट इट लाइक दिस सो दैट देयर इज मोर क्लैरिटी. सो दिस इज 12% and this is 12 if it is full year. So 12 months का 12 है, तो 6 months का कितना? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली हम. This 12 is for 12 months. So for 6 months, how much? Okay, so you will get this as 1,200. For 3.5 year, you can simply write 12% and simply do into 3.5. Into 3.5. And for 5.5 years, you can simply multiply by 5.5. Okay, 8,400 और 13,200. किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है? आई वांट टू वर्क विथ समबडी. ओरल कैलकुलेशन करेंगे. कौन करना चाहेगा मेरे से ओरल कैलकुलेशन? बिंदास, गलत हुआ तो सीखने मिलेगा. जल्दी, कौन कौन है वो? सब मैं ट्राई करूं? हाँ बिंदास. तो हाँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, इधर लिखूंगा कुछ फिगर्स. 40,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 12% इंटरेस्ट है, तो एक साल का कितना मिलेगा? इंटरेस्ट एक साल का. एक साल का इंटरेस्ट होगा 4800. राइट, 4800. एक महीने का 400. वेरी गुड. 6 मंथ्स का 2400. 2,400. 7.5 months का 3200. 3000 नहीं 3000. हाँ, 8 months का 3,200. 3200. हाँ, और 7.5 months का होगा आपका 400 into 7 और प्लस 400 का हाफ, दैट इज 200, दैट इज 3,000. वेरी गुड. 5 साल का 24,000. 24,000. वेरी गुड. किसी को डाउट जो उसने भी कैलकुलेशन किया बिना फॉर्मूला? तो ये वो क्या कर रहा था, वो इन दोनों को बेस ले रहा था. एम आई राइट आहन? यस सर. जब मंथ का पूछा तो मंथ वाले फिगर को बेस लिया, और मैंने जानबूझ के पहले ये दोनों पूछ लिए. उसको पहले 7.5 पूछ लेता तो फॉर्मूला यूज करना पड़ता. बट अगर पहले दिमाग में हमने एक साल का या एक महीने का गिन लिया है, तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन ओरली किए जा सकते हैं. So though they may ask in the question, listen carefully for these shortcuts. They may ask in the question for 7.5 months. Okay, you can use Calci, no problem. But at times I feel that your mind is faster than calculator.
और कुछ कुछ चीजों में कैलकुलेटर में कुछ बटन दबाओगे तो आंसर मिलेगा, पर बटन क्या दबाने का वो तो दिमाग सोचेगा ना, तो दिमाग को उस हिसाब से कल्टीवेट करना पड़ेगा। somebody else, आन वेरी गुड बेटा, somebody else, one more person, जल्दी फास्ट। not fair, not fair। Sir, can you? Sir, I try. अभी तीन जन आ गए। कौन था पहला, सबसे पहला कौन बोला? Sir, मैं पलाश। पलाश ने बोला, चलो पलाश के साथ। पलाश हमने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं एंड 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो इफ आई कीप इट फॉर 3.5 years, how much I will get? मैं जानबूझ के तेरे को डायरेक्टली 3.5 दे रहा हूँ। You can speak up what you are calculating. हाँ, तो पहले 3 साल का कर लूंगा और फिर 6 months के हिसाब से। बेटर ये होगा बेटा कि पहले 1 साल का कर। अच्छा, बोल। 6,000 1 साल का। करेक्ट, हाँ 3 साल का 18,000 करेक्ट, और फिर 21,000। वेरी गुड। हाँ, हाफ मंथ का 3,000 ऐड करें 3,000। हाँ, 21,000 होगा 3.5 years का। ओके, वन मोर, what will be interest of 3 months? Palash, 5,000? No, I don't know. sorry। 1,500. हाँ, 1। पलाश से बात हो रही थी, बीच में क्यों बोल रहे हो आप लोग? यस पलाश। 6,000 divided by 4 हो सकता है सर। आई डोंट नो, क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? देखो, कीप अ हैबिट ऑफ गिविंग एन आंसर रादर देन रेजिंग अ डाउट टू योर आंसर। आंसर दो, भले गलत हुआ तो सीख लो। 1,500। हाँ, कैसे? हाँ, कैसे बोलो? 1 month का निकाल के फिर। वेरी गुड, वो भी कर सकते हैं, है ना? हाँ। डिवाइड बाय 4 भी हो सकता है ना? हाँ, एक ही बात है बेटा, दोनों हो सकता है। तो 6,000 डिवाइड बाय 12 किया। देखो, यूनिटरी मेथड मतलब एक यूनिट का निकाल रहे हो और फिर मल्टीप्लाई करना इजी होता है। मंथ में पूछा है, यहाँ पे ईयर है, तो डिवाइड बाय 12 कर लेता हूं मैं दिमाग में, तो 1 महीने का 500, 3 महीने का 1500, ये मुझे इजी लगता है। डिवाइड ये ऐसा भी करोगे तो वही होता है ना, डिवाइड बाय 12 इंटू 3, यानी 3/12 किया तो 4, तो डिवाइड बाय 4 से भी तो वही आंसर आएगा भाई मैथमेटिकली। ठीक है, वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कल हमने देखा था, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 रेज्ड टू n। ओके, तो अगर मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 10% per annum is the rate of interest, and if I am keeping it in a fixed deposit for 3 years, so I'm going to make a table for you, opening, पहले टेबल बनाते हैं फिर फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग। तो 0 यानी अभी तो ओपनिंग कुछ नहीं है, अभी तो ओपनिंग कुछ नहीं है, अभी तो हम दे रहे हैं 10,000 रुपए, तो मैंने इधर से डैश 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 कर दिया। ओके, 1 साल के बाद जब मैं गया तो ओपनिंग 10,000 था, अब 10,000 पे 1 साल का वो इंटरेस्ट देंगे 10%, विच इज 1,000 रुपीज, एंड नाउ एट द एंड they have 11,000. Second year opening is 11,000. On 11,000 they will give me interest 1,100, which will be 12,100.
Third year 12,100 is opening, 1210 they will give me, 13,310 will be closing. ये हमने कल किया था इसलिए मैंने फास्ट कर दिया. अब ये आंसर अगर पूछा है कि 3 साल बाद कितना होगा तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. फॉर्मूला इज P is 10,000, 1 plus I is 10 upon 100 raised to 3. So this is 10,000 into 1.1 raised to 3. कैल्सी पे आपको शॉर्टकट बताया था. I want everybody to use that shortcut. Please take your कैल्सी. उस पे 1.1 प्रेस करिए, 1.1 फिर इनटू प्रेस करिए एंड देन प्रेस इज इक्वल टू. बताओ शाउट आउट कितना आ रहा है कैल्सी पे? 1.21 एंड दिस इज नथिंग बट 1.1 का स्क्वायर. 2 बार हो यार चुका. मेरा नहीं आ रहा है तेरा नहीं आ रहा है ना? आई वांटेड कैल्सी somebody पर। to say आई गॉट दैट. इनटू 2 बार प्रेस कर बेटा. तेरा अगर नहीं आ रहा है तो इनटू को 2 बार प्रेस कर और फिर इक्वल टू कर, दिखाएगा जादू. सर तो भी नहीं आया। तो कैल्सी हाँ को सर नहीं आ रहा. तो कैल्सी को फेंक दे. सर 1+ का है सर। हाँ, ये सर नहीं आ रहा. 1.1 इनटू इक्वल टू करोगे तो नहीं आ रहा है. नो सर. नहीं सर नहीं नहीं आ रहा सर. है। तो कैल्सी बकवास है आप लोगों का. दूसरा एक ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं. फिर ये शॉर्टकट आपके कैल्सी में नहीं हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द मेक ऑफ द कैल्सी. तो आपकी कैल्सी में वो फंक्शन नहीं डाला होगा उन्होंने. एक और ट्राई करो जरा, जो मैंने साहिल को बताया. 1.1 इनटू 2 बार प्रेस करो पहले ही और फिर इज इक्वल टू दबाओ. सर रुक 1 मिनट रुक. 1.1 इनटू 2 बार प्रेस करो और फिर इज इक्वल टू दबाओ. आया क्या जिसका पहले नहीं आ रहा था? सर नहीं मेरा सर सर. इनवैलिड लिख रहा है. आप कुछ और कर रहे हो. इनवैलिड कैसे आएगा? सर 2 बार सर मल्टीप्लिकेशन दबाने से कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है. यस सर. सर ये लोग फोन में यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल से। मैंने अभी पीसी से अबे ट्राई किया सर, गध- पीसी पे हो गया, अबे फोन से गधे नहीं हो लोग, रहा है। यस सर पीसी पे हो रहा है. हाँ सर फोन पे नहीं हो रहा है. गधे लोग सर कैलकुलेटर यूज कर रहे मैंने हैं कैलकुलेटर यूज करने बोला. ऐप ऑफ कैलकुलेटर यूज करने नहीं बोला है. यस सर. Absolutely गधे लोग हैं. कैलकुलेटर यूज करने बोला है. आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो कैलकुलेटर का. कैसे होएगा? मैं आपको सीजन बॉल से स्विंग कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं. आप प्लास्टिक बॉल से खेल रहे हो, बोलते हैं नहीं होता है स्विंग. अरे कैसे होएगा? प्लास्टिक बॉल से खेल रहा है बच्चा तू, तो नहीं होगा बेटा. अपने को कैलकुलेटर चाहिए. क्या बोला? कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर. कल मैं वो इमेज भेजना भूल गया था, आज भेज देता हूं. तो बाकी सब में नहीं होगा. कैलकुलेटर जिसके पास है उनका हो रहा है कि नहीं? No sir. हो रहा है. सर हो रहा है. सर पीसी पे हो जा रहा है. अरे तेरे को समझा नहीं क्या? सर कैल्सी पे भी हो गया। हाँ, पीसी पे नहीं होगा भाई. कैलकुलेटर लेके कर पल्लवी. सर पीसी पे हो जा रहा है. सर पीसी पे हो रहा है। वेरी गुड. पर एग्जाम में होएगा क्या पीसी तेरे पास? नो सर. हाँ, तो अभी ले जो बोला है लेंगे. वो करो. अभी जो बोला है वो करो. अभी तुम उस पे करोगे, उस पे तो बहुत कुछ हो जाएगा. पीसी है तो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करेगी तो ये सब दे देगा बिना कुछ लिखे. तो चलेगा एग्जाम में. कुछ भी बात कर दी है. वेरी गुड. चलो तो वापस. हाँ सॉरी 1.1 इंटू इक्वल टू किया तो 1.21 आया. एक और बार इक्वल टू करोगे तो आ जाएगा 1.331 विच इज नथिंग बट 1.1 का क्यूब. तो ये शॉर्टकट है. हायर कैलकुलेशंस अगर करने हैं तो विदाउट प्रेसिंग इट 3 टाइम्स ऐसे करने से जगह डायरेक्टली आपका ये आंसर आ सकता है. चलो तो ये आ गया 10,000 इंटू 1.331 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 13,310.
ये अमाउंट हो गया, और इंटरेस्ट आपको मिलेगा a minus s, I'm sorry, a minus p, which is 13,310 minus 10,000, which is 3,310. सर थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ, लिख लो ये पूरा। मैंने आपके लिए एक बात सोची है, देखो आपको हजम होती है कि नहीं, कि आई विल कीप ओनली 1.5 hour लेक्चर इंस्टेड ऑफ 2 hour। चलेगा? सर ऑफकोर्स चलेगा। मतलब कल मैं सोच रहा था कि आप लोग सोच रहे हो इतना जल्दी क्यों करने का, तो थोड़ा वैलिड है आपका सोचना। तो मेरे को लगा चलो जल्दी तो कर ही रहे हैं, पर थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, रादर देन ट्रबलिंग यू फॉर 2 hours, लेट अस ट्रबल ओनली फॉर 1.5। नेक्स्ट वीक में सैटरडे का लेक्चर मैंने शाम का रख दिया है, आई थिंक इट इज 5:30, और संडे का लेक्चर थोड़ा लेट रखा है, थोड़ा ज्यादा सो सकती है ध्रुवी, यू कैन स्लीप अप टू 10 मे बी। थैंक यू तो बोलो यार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू You, सर। sir. वेलकम। मतलब सर संडे 11 बजे का होगा? 10 बजे का होगा बेटा, 10 बजे का, इतना भी खुश मत हो जाता। सर आपने बोला स्लीप टिल 10। तो अभी तो काफी बच्चे लोग अभी 9 बजे के लेक्चर में 8:55 को उठे हैं बेटा। सर मैं खुद भी उतने ही बजे उठा हूँ। तो इसलिए तो बोला स्लीप टिल 10 मतलब लेक्चर एट 10। ओके, सो लेट मी करेक्ट माय सेल्फ। सर आप सैटरडे को ऐसे मतलब आफ्टरनून में नहीं रख सकते? सैटरडे आफ्टरनून आपका कॉलेज अगर कंप्लीट हो जाता है तो आई कैन कीप, आई एम फ्री ऑन सैटरडे आफ्टरनून्स, बट काफी कॉलेजेस 4:30 को कंप्लीट होते हैं ना, 4:35, इसके लिए। इफ ऑल ऑफ यू अग्री कि नहीं सर हम 4 बजे आएंगे, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बोलो अभी। मेरे को तो चलेगा। कॉलेज है सर 4:30। चलेगा सर। Yes, sir. 4 बजे चलेगा। 4 बजे। किसको नहीं चलेगा वो बोलो, एनीबॉडी जिसको नहीं चलेगा। सर आहन। हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना। सर कथन। आपका कितना बजे कंप्लीट होगा आहन कथन? 4:35। 4:35। 4:35 है ना, तो फिर 5:30 की जगह 5 बजे रखूंगा। 5 to 6:30। हाँ सर चलेगा। सर 4:30 में रख दो, सीधा हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ऐसा क्या? हाँ सर। ठीक है, 4:30 को रख देंगे। जरा मेरे को एक व्हाट्सएप करके रखना प्लीज, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। चलो हो गया ये। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान से आप ट्रू फॉल्स बोलिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्चुअली थोड़े ट्रिकी होते हैं, इजी होते हैं पर ट्रिकी होते हैं। यू नीड टू गेट द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। सो देखो मैं ट्रैप ले डाउन कर रहा हूं, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट is always higher than simple interest, true या false? चैट बॉक्स में लिखो, compound interest is always higher than simple interest. This is what I am saying, true या false? If you want you can qualify your answer, मतलब आंसर लिखने के बाद ब्रैकेट में कुछ लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो ट्रू फॉल्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्रिश बड़ा बड़ा शाना है, डोंट नो बोल दिया। एग्जाम में लिख के आना डोंट नो।
स्नेही ने ट्रू बोला है, श्रिया ने फॉल्स बोला है, क्रिश ने डोंट नो बोला है, बाकी दो बच्चों ने ट्रू बोला है। ओके, पलाश ने कुछ क्वालिफाई किया है। पलाश, देयर हैज टू बी वन मोर क्वालिफिकेशन। कथन ने फॉल्स बोला है। ध्रुव, चहल, साहिल, दिव्यांश सब लोग ट्रू बोल रहे हैं। यशवी ने ट्रू बोला, ध्रुवी ने ट्रू बोला, पर्व ने ट्रू बोला, क्षितिज ने ट्रू बोला, फ्रिया ने ट्रू नहीं, फ्रिया ने फॉल्स बोला, हेतवी भवित ने ट्रू बोला। दक्ष बोल रहा है कुछ क्वालिफाई कर रहा है। ओके So Palash was the first one to qualify. Palash, can you say what did you say? सर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है तभी ज्यादा होगा जब दोनों सेम टाइम पीरियड पे हम लोग कंपेयर करेंगे। Very good, very good. सर हमने अजम्पशन वही लिया था। मैंने बोला था assumption लिखने के लिए। So if the question is, I know you know this, but just trying to play games with you. Compound interest is higher than simple interest provided तीन चीजें सेम हो ना। क्या? प्रिंसिपल सेम हो, पीरियड सेम हो एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो। ये 15% होगा और ये 10% होगा तो थोड़ी ना ये ज्यादा होगा। तो ये तीन फैक्टर पे इंटरेस्ट डिपेंडेंट है ना। तो अगर ये तीनों सेम है तो ये ऑलवेज हो सकता है, वरना ऑलवेज गलत है। एम आई राइट? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Somebody give it back to me. Chalo, somebody give it back to me. Sorry? Aditi, can you explain what did I say? So you said that compound interest is greater than simple interest when the principal amount invested is same, the period for which it is invested is same, and rate of interest is same. Correct. So other things remaining equal, economics की terms में, other things remaining same, compound interest will be higher than simple interest. Okay. Now फिर हेरा फेरी देखा आपने? फिर हेरा फेरी, यस सर। उसमें पैसा कितने टाइम में डबल हो रहा था? 25 दिन। 21 दिन। 21 दिन। 20, पर हो नहीं रहा था, भाग गई थी वो तो। बट 21 डेज का प्रॉमिस था कि 21 डेज में डबल, एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो। तो अगर ध्यान से सुनिएगा, हाँ, अगर मैं 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं, 10,000 रुपया, और सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम, तो उसको डबल होने में यानी कि 20,000 होने में कितना समय लगेगा? चैट बॉक्स में लिखने का, चैट बॉक्स में लिखने का। सर रिपीट करो ना एक बार। तेरे जेब में ना अभी 10,000 रुपया है और तू सोच रहा है डबल करने का। तूने फिर हेरा फेरी देखा, वो लोग ने बोला 21 डेज में डबल करके देते हैं, तेरे को भी डबल करने का। तू बैंक में गया, तेरे को उनको नहीं देने का, तो बैंक को पूछा भाई कितना इंटरेस्ट दोगे? उन्होंने बोला 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी 10 का 20 करने में तुझे कितना टाइम लगेगा? How many years it will take for you to double your money? That's the question. Chat box में आंसर।
ये दक्ष तू मार डालेगा रे। नहीं नहीं, वो मैं गलती से लिख दिया था। यशवी तूने क्या लिखा मेरे को नहीं समझा। तो तो 10 का 20 होने का मतलब कुछ बच्चों का गलत है। 10 years is the right answer. Let us see how. I have 10,000 with me. So can I say this is principal is 10,000? Principal is 10,000 and I want 20,000. So can I say A is 20,000? Now for simple interest, I have a formula. A is P plus SI, which means 20,000 is 10,000 plus SI, which means my interest which I want is 10,000 rupees. हाँ या ना? इंटरेस्ट जो मुझे चाहिए वो 10,000 रुपया चाहिए। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि आप 10,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 पे जैसे मैंने आपको सिखाया, पहले 1 साल का गिनो। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? 1,000। तो 10,000 इंटरेस्ट मिलने में कितने साल लगेंगे? 10 साल लगेंगे बेटा। तो 10 साल में आपका 10,000 से 20,000 होगा। जिन्होंने 20 आंसर दिया उन्होंने मिस्टेक क्या किया? उन्होंने 20,000 को डिवाइड किया 1,000 से और फिर 20 आंसर दे दिया। अरे भाई इंटरेस्ट थोड़ी ना 20,000 चाहिए अपने को, 10 तो अपना है ना पहले से, इंटरेस्ट 10,000 ही चाहिए। ये समझा गया? किसी को डाउट जिन्होंने 20,000 लिखा था? Pallavi, can you explain what did you understood? Yes, sir. Can you explain what did you understand? सर फर्स्ट हमें निकालना है कि एक साल का हमें कितना मिला, और उसके बाद अगर हम उसको 10 से भी वो कर दें इनटू, तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। नहीं, आई एम नॉट क्लियर आपको क्या चाहिए और क्या मिला। धीरे धीरे जा, अपने को कोई राजधानी ट्रेन नहीं पकड़ने है। सर एक्चुअली मेरा आंसर 1.8 आ रहा था अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था तो। मेरे को तेरा फॉर्मूला नहीं मालूम है, ये आई विल एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला, बट ये तरीका समझा तेरे को? तो ये इसमें क्या यस सर। समझा वो मेरे को बता जरा बस, फिर मैं तेरे आंसर पे आऊंगा। सर एक्चुअली फर्स्ट हमने फर्स्ट ईयर का निकाला एंड देन उसको हमने 10 से इंटू कर दिया, देन वी गेट आवर 10 इयर्स। हमें एक साल में हमको 1,000 मिल रहा था एंड हमको उसका डबल चाहिए था, तो हमें एक साल का मिल रहा था 1,000 एंड हमने उसका डबल चाहिए था, देन वी डिवाइड इन मल्टीप्लाई बाय 10। यस सर 10। पल्लवी, वो 10,000 कहाँ से आया? Why 10,000? सर यू सेड ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, so वो 10 से मल्टीप्लाई करने वाला फंडा कहाँ से आया? Why am I multiplying by 10? Are you sure that you are clear? yes sir clear है, but how can I explain it? I don't know. Okay. तेरा फॉर्मूला में तूने क्या किया बता चल, लेट मी लिसन टू यू। सर एक्चुअली फर्स्ट मैंने ए लिया 20,000 एंड देन ए पी आपने 10,000। 20,000, ओके।
P 20,000, P कितना लिया? P 10,000, ओके and then whole bracket 1 plus 10 divided by 100 into T, then bracket close. 1 plus 10 divided by 100 into T. Into T. Into T. अरे सर ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर T इधर 10 divided by 100 into T, then bracket close. अच्छा ये ऐसा into T ऐसा. Yes sir. ओके ये फॉर्मूला किसने सिखाया आपको? सर एक्चुअली बचपन में ऐसे ही किया था. अच्छा अच्छा बचपन में. तू बहुत बड़ी हो गई अभी. सर आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में. ये रहा ये फॉर्मूला. ये है जो आप यूज करना चाहते हैं. तो वो इनटू टी नहीं है, वो रेस टू टी है. सर आई गेट इट सर. एक्चुअली मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रही थी कब से. तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना था मैडम जी, पर आप वो दोनों फॉर्मूला का मिक्सचर कर दिया आपने. कंपाउंड और सिंपल का मिक्सचर कर दिया. सिंपल में टी है, हमने यूज किया है टी सिंपल में, पर उसमें Yes, ऐसा पी के ब्रैकेट में कुछ नहीं है. इट इज स्ट्रेट पी आर टी अपॉन 100. ये P into bracket blah 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 is a formula for compound interest. So we are not taking compound interest here. We are calculating simple interest. Question में बताया था कि simple interest है. तो अगर सर आप आ गया समझ. सर एक्चुअली हाँ मैंने क्वेश्चन ध्यान से सुना ही नहीं था. हाँ ये सब लोग ऐसा ही करते हैं बेटा. और मैक्सिमम नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम गलती उसी की वजह से होता है कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है और आंसर निकालने में धड़ाधड़ लग जाते हैं. तो अगर फॉर्मूला है यही क्वेश्चन को, तो हम कैसे कर सकते हैं? सो आई कैन से Simple interest into 100 upon P into R. ओके. So let me write that A is equal to P plus SI. So can I say A is 2P? Yes, sir. Because हमें प्रिंसिपल का डबल चाहिए, तो A is equal to 2P लिख दिया. तो P plus SI. That means SI is equal to P. तो P कितना है? 10,000 है. तो SI is equal to, मतलब इंटरेस्ट 10,000 चाहिए ऐसा हमने निकाला. अभी इंटरेस्ट का फॉर्मूला P that is 10,000 into R that is 10% into T. तो अभी निकालो T आएगा 10. समझा कि नहीं समझा? यस सर. समझा सर. लिख लो जरा दोनों तरीके. ये अपना वाला तरीका कितना सिंपल है ऋषि, कितना सिंपल है. हाँ बिना कुछ किए लॉजिक से कॉन्सेप्ट से. 1 साल का 1,000, 10 का 20 करने का है, मतलब 10,000 ब्याज होना चाहिए. 1 साल में 1,000 मिलता है, 10,000 मिलने में 10 साल लगेंगे. 1 का 2 10 साल में होगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सिंपल है. छाप दो जल्दी जल्दी. सोचो अपना पैसा 10 साल में डबल होता है और फिर हेरा फेरी में 21 दिन में डबल कर रहा था.
हो गया? ये हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। डन, ओके। चलो अभी सेम क्वेश्चन, हाँ, सेम क्वेश्चन, shout out your answer, fastest finger first. Ready? The question is, other things remaining same. अभी क्वेश्चन क्या था, डबल कितने में होगा, एंड नाउ द क्वेश्चन इज ट्रिपल कितने साल में होगा? जल्दी, फास्ट, ट्रिपल। 15 साल। ओके, Sir, 20 years. कितना? 20 years. 20, Sir, 20 years. 20 years. 20, okay, 20 years. 20 year is right answer. ये ट्रिपल होने के लिए कितना चाहिए रे? 20,000 चाहिए ना दोस्त, इंटरेस्ट 10 का 30,000 होना चाहिए, राइट? तो इंटरेस्ट कितना चाहिए? 20,000। एक साल का 1,000 है, तो 20,000 के लिए 20 साल लगेंगे। यस नो? सर ओके, अभी आगे जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अभी मैं फोर टाइम्स पूछूंगा तो क्या आंसर आएगा? बोलो जल्दी, चलो 4 टाइम्स। 30 years. 30 साल बराबर एकदम। ओके, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं, कुछ और सीखते हैं। ये पल्लवी कहाँ से है मालूम है आप लोगों को? पल्लवी, यू वांट टू शेयर फ्रॉम वेयर यू आर एंड हाउ डिड यू जॉइन अस? यस सर, आई एम फ्रॉम वाराणसी, यूपी। और कुछ बताना चाहेगी उनको? सर मुझे आपका नंबर एक्चुअली आपने कॉल सेंटर में एक नंबर दिया था एंड मैंने वहाँ पे जस्ट कॉल कर दिया बिकॉज आपने एक जगह शेयर किया था कि आप 10th का परसेंटेज इक्वल्स टू 11th का स्कॉलरशिप देते हैं अपने कोचिंग में, एंड मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी। देन मैंने वहाँ कॉल किया एंड जो वहाँ पे थी लेडीज, वो शायद न्यू फ्रेशर थी, तो उन्होंने मेरे को आपका पर्सनल नंबर दे दिया एंड जस्ट मैंने कॉल कर दिया उसी पे, और मैंने आपको बताया कि मुझे सीए करना है एक्चुअल में, और मेरी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, दैट्स व्हाई मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। वो जाने दे, वो जाने दे। So everyone, I was inspired with Pallavi. The first time I spoke with her, first of all, she's in Varanasi and still wants to join us for coaching. यहाँ पे बच्चे, so Pallavi, we have small suburbs here in Bombay, Yes. and यहाँ पे there are people who don't want to even travel from one suburb to another suburb. तो Pallavi is joining us from वाराणसी, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से है भाई। और दूसरा, पल्लवी, व्हाट आई गॉट इंस्पायर्ड वाज, उसने ऑलरेडी, बच्चे लोग, उसने ऑलरेडी सारे मॉड्यूल डाउनलोड कर लिया है और उसने ऑलरेडी सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के काफी सारे टॉपिक्स ऑन हर ओन सीख भी लिया है। एम आई राइट पल्लवी? सर एक्चुअली मेरे पास इस वक्त भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ज़ेरॉक्स है उस चैप्टर का, मैंने सॉल्व किया। मेरे को एक डाउट आपसे पूछना था। एंड में पूछ लेना। ओके सर, ओके सर। या तो आई एम नॉट इन कंपैरिजन मोड, ओके, कि वो ऐसा कर रही है आपने अभी तक नहीं किया, ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। I got inspired myself because if a child or a student is really clear that he or she wants to be CA, then nothing is going to come in his or her way. Nothing. मैथ्स भी बीच में नहीं आएगा और वो 10% रिजल्ट आता है वो भी बीच में नहीं आएगा, और फिर आप उल्टा काम करने लगोगे कि अगर करना ही है तो अभी ये भी करूंगा, मैं ये रिसोर्स यूज करूंगा, ये रिसोर्स यूज करूंगा। एंड बिलीव मी बच्चे लोग, आप लोग इतने लकी है ना, इतने लकी है कि सारे रिसोर्सेस आपको इन योर बेडरूम अवेलेबल है। इमेजिन करो
वर्ल्ड के या इंडिया के बेस्ट प्रोफेसर आपके बेडरूम में आ सकते हैं, आपके रूम में आ सकते हैं, आपके लिविंग रूम में आ सकते हैं पढ़ाने के लिए. This was not possible when we were studying. And don't you think it's a huge resource? हाँ या ना? It is huge यार. अभी आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, बस उतना इनिशिएटिव लेना है. चलो, नो लेक्चर, आगे बढ़ते हैं. अभी तो मैं एक्चुअली ये कहने जा रहा था, फिर मेरे को पल्लवी की याद आई कि पल्लवी यहाँ पे जुहू बीच करके एक एरिया है जहाँ पे बीच के एंड में काफी सारे स्टॉल्स होते हैं, और स्टॉल्स के बीच में से अगर आप जाओगे तो सब लोग आपको बुलाते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हमारे यहाँ पे खाना खाने आओ, खाना खाने आओ, पाव भाजी मस्त है. तो ऐसे ही कुछ मुझे क्रिएट करना है. तो आपके पास पैसा है, एग्जाम्पल है, आई एम कीपिंग द अमाउंट स्मॉल, 10,000 है, and there are banks here. The first bank is State Bank, the second bank is HDFC, third bank is ICICI, fourth bank is Bank of Baroda. बस 4 बैंक बस हो गया. तो आप ये 10,000 रुपया लेके जा रहे हो, ये लेन से पास हो रहे हो, ओके. एंड उनके आदमी लोग बैंक के बाहर खड़े हैं, उनको पता है आपके जेब में 10,000 रुपए और आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो. तो वो सब लोग चिल्ला रहे हैं, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, ज्यादा इंटरेस्ट देगा. HDFC बोलते नहीं मेरे पास आ, ऐसे बोलते मेरे पास आ. और अभी आप उनको 1 by 1 टर्म्स पूछ रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग टू डिसाइड. से एग्जाम्पल SBI ने बोला हम आपको 10% पर एनम देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंड. से HDFC ने 11% बोला पर एनम कंपाउंड, 12% पर एनम कंपाउंड, 13% पर एनम कंपाउंड. तो ये तो छोटा बच्चा भी आंसर दे देगा. क्या करना चाहिए भाई? सर BOB. अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो हायर इज द बेटर. तो ये केस में तो ये आंसर होगा. कुछ गिनने का भी जरूरत नहीं है. चेंज करते हैं कुछ. HDFC ने बोला कि हम आपको 10% पर एनम देंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब ये क्या बात हुई? कंपाउंडेड हाफ ईयरली. आपको समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब है? तो HDFC ने बोला ना 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 Pallavi, let everybody understand and learn. I will give you time when I want to ask questions. You are asking means इसका क्या मतलब है, ऐसा कहना चाह रही हो? नो सर, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन कर रही थी. नहीं नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. ICICI में गए आप, ICICI बोलता है क्या, वो HDFC वाला आपने हाफ ईयरली बोला ना, मैं आपको क्वार्टरली देने वाला हूँ, 10% पर एनम क्वार्टरली. अच्छा, let me change slightly so that there is no fraction in calculation. रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 12% कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं 12%, कंपाउंडेड क्वार्टरली. और बैंक ऑफ बड़ौदा बोलता है क्या, हम लोग बड़ौदा वाले आदमी लोग हैं, तो हम तो आपको देंगे कंपाउंडेड मंथली. ओ ओ ओ मंथली. बाद में ना इधर एक और बैंक ले लेंगे, डेली. तो इसका क्या मतलब है समझते हैं. स्टेट बैंक वाले, Sir, may I? नो 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 नो, वेट, लेट एवरीबडी फर्स्ट अंडरस्टैंड. कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो मैं आपको बोलूंगा बोलने के लिए. अच्छा, यू आर गोइंग टू कीप दिस मनी फॉर से 3 years. ओके, चल पल्लवी को पहले चांस देता हूं, आपको बोलना है तो, फिर अदिति को. बोल पल्लवी, क्या बोलने है, जल्दी बोल. सर हाफ ईयरली मींस कि हमको जो हमारा कन्वर्जन पीरियड होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेगा वो, मतलब वो 1 साल में 2 बार करेगा इंटरेस्ट. एंड क्वार्टरली मींस कि वो उसको 4 बार करेगा. एंड मंथली मींस कि 1/12 हो जाएगा वो फिर. ओके, राइट है. ओके, अदिति, Yes, sir. you wanted to explain ना?
Yes, sir. So in SBI, they are saying they will be calculating the compound interest yearly. So after 1 year, they will calculate compound interest and then add the interest in the principal amount. And in HDFC, they'll calculate in 6 months. ICICI, they'll calculate in 3 months, and Bank of Baroda will calculate it monthly, Right. like after 1 month. Right. So here, so both of them are right. Let me create the example. State Bank of India ने प्रपोजल दिया आपको कि सर जी आप है ना हर महीने आई एम सॉरी हर साल के एंड में आइएगा आप, प्लीज कम एवरी ईयर एट द एंड. सो टुडे इज 1st of January 2018. तो आप है ना 31st दिसंबर को आइएगा, हम एक कप चाय पियेंगे सामने बैठ के, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो 31st दिसंबर 18 को आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कितना इंटरेस्ट आया? 10,000 पे 12%. एक मिनट ना, थोड़ा जगह क्रिएट करना पड़ेगा, ये नहीं मजा आएगा फिर. So first year 10,000 पे, so I'm not writing the calculation here, I'm writing the figures. 10,000 पे 12%, that means how much? Interest will be 1,200. And at the end of the year, how much will be there with them is 11,200. हाँ या ना? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सेकेंड ईयर के एंड में 11,200 पे 12%, कैलकुलेट करके बताइए. 11,200 पे 12%, बोलो. 1344. 1344. 1344. And now the amount is 12,544. थर्ड ईयर के एंड में 1505. There is 0.28 also, which I'm ignoring, and this comes to 14,049. Any doubt? And let us solve this with the formula also. 10,000 1 plus 12 upon 100 raised to 3. गिन के जरा चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं. शॉर्टकट यूज करना, 1.12 into equal to and then into 10,000. चेक करके हो जाए तो मुझे बताइए, then I'll go ahead. हाँ सर. Done. Okay. So Yes. I went there at the end of the first year. He calculated interest, but he didn't give it to me. उसने मेरे 10,000 में ऐड कर दिया. Second year again I went for a cup of tea. He calculated interest is more now, 1344, and then he added to the previous amount. In HDFC he said कि सर ये मेरे को मालूम है वो SBI वाला कंजूस है, वो साल में एक ही बार चाय पिलाता है आपको. सर हम साल में 2 बार चाय पिलाएंगे. तो 6 months के बाद मैं गया. 6 months के बाद मैं गया. ओके तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है. साल में 3 बार गए, आई एम सॉरी, साल में 1 बार गए तो 3 साल में 3 बार गए. यहाँ पे मैं 3 साल में कितनी बार जाऊंगा ये बताइए. वेरी गुड. 3 साल में कितनी बार जाऊंगा? 6 बार जाऊंगा भाई. 1 साल में 2 बार बुला रहे हैं, हाफ ईयरली बुला रहे हैं, बोल रहे हैं हर 6 महीने में आओ चाय पी के जाओ. तो द फर्स्ट टाइम दैट आई विल गो, how much interest they will calculate? Tell me, jaldi, fast, shout out. 600. 600. Very good. So amount at the end is 10,600.
सेकेंड टाइम दैट आई विल गो, ये सेकेंड ईयर नहीं है बाबा, ये एक्चुअली 1 साल यहाँ पे खत्म हुआ है। हाँ, सेकेंड ईयर बोलो कितना, बोलो बोलो। 636. Very good. Who else is getting 636? And who is not getting 636? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। हाँ, 636 कैसे आया? किसको किसको आया 636? एक कथन को आया। Who else got 636? सर मेरे को भी आया दक्ष। मुझे भी आया। ओके गुड। ये लास्ट किसने बोला बेटा? क्षितिज। क्षितिज बता बेटा सबको कैसे आया 636? 10,600 पे 6%, 6% क्यों लिया रे? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% है। क्योंकि वो हाफ ईयर है ना। हाँ वो 12% एक पूरे साल का पर एनम, हाँ तो 6% उसका हाफ। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 12% जो इंटरेस्ट बताया था HDFC ने, वो तो पूरे साल का था। तो अभी हम 6 महीने में जा रहे हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो 6% होगा। तो 10,600 पे 6% आपको लेना है। सबको समझा? से नो इफ यू हैवंट, आगे फिर तकलीफ होगा। ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो फॉर्मूला के मोहताज नहीं रहोगे। फिर बिना फॉर्मूला के भी आंसर बहुत बार आप लेके आ सकते हो। इज देयर एनीबॉडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? देखो मैं पूछने जा रहा हूं अभी, हाँ, 1 by 1। चलो ठीक है, तो हम पूछते हैं फिर। स्नेही तू बता, तेरे को क्या समझा? स्नेही, Yes, sir. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? सर क्या ये हाफ ईयरली वाला एक्सप्लेन करूं? हाँ जी, तो सर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ कैलकुलेट होगा। करेक्ट। 6% पर मतलब 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एवरी 6 मंथ पर 6% से कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल पे। ओके, तो 10,000 का 6% लेंगे तो 600 होता है सिर्फ। तो 636 कैसे लिखा हमने? वही तो सवाल है ना, 636 कैसे लिखा? अभी तू सुबह सुबह इसके लिए आई है कि तू जवाब नहीं दे सके, या सीखने के लिए आई है? बोल, जवाब दे। हितवी, कैन यू एक्सप्लेन Yes, sir. प्लीज? Uh, um, we have 12% per annum for 1 year, and if we have to pay, and for the half month, we have to calculate by 6%. हाफ मंथ? मतलब 6 months, हम्म 6 months. हम्म तो 10,000 is the principal, and we have to multiply by 6 upon 12. हम्म तो करके देख कितना आया। 600 आया, देख कैलसी पे। 10,000 into 6 upon 100।
है ना, Yes, 600 है ना। तो yes. तूने कैलकुलेट ही नहीं किया। मैंने जब बोला आप चेक करो 636 आया, समझा कि नहीं, तूने कैलकुलेट नहीं किया। हाँ या ना में जवाब दे जल्दी। बस सर 6/12 आएगा ना? आई डोंट नो, यू टेल मी एंड गेट मी 636 बाबा। So the question is, did you calculate that time? Yes or no? Yes, sir. Did you calculate 636 before I asked you? Sir, I calculated, but it didn't come. Then why did you not ask me the doubt? Why you want me to be a police, CID, CBI? And see my strike rate, बच्चा लोग, see my strike rate. 2 बच्चों को पूछा, दोनों को नहीं आया. I would love to fail in such cases. But सी आपको बनने का है बाबा, मेरे को आता है 636 कैसे आया. आप लोग कंफ्यूजन लेने के लिए तो सुबह नहीं आए वो संडे को लेक्चर अटेंड करने के लिए. आई डोंट नो व्हाट यू ऑल थिंक. किससे बचने का है हितवी तेरे को? Can't you open up your mouth and ask, sir, I am not getting 636. आज तक ना एक भी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में ऐसा न्यूज़ नहीं आया है कि ये बच्चे ने लेक्चर में डाउट पूछा और उसका देहांत हो गया, हार्ट अटैक आया. ऐसा सुना है क्या हितवी कभी न्यूज़? No, sir. दैट किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा और डाउट पूछने के बाद तुरंत हार्ट अटैक आ गया उसको? मैंने तो नहीं. No, sir. तो जिंदा रहेगी पक्का? Sir, can you explain? Provided you promise that each time you'll ask. Yes, sir. And what if you don't? So I will ask from now. Okay. What if you don't is my question. No, sir, I will ask now. I If got your have- promise, but I'm still asking. What if you don't? No, sir, I will ask you. Okay. Yeah. Sorry, sir. सॉरी तेरे अपने आप को बोल, मेरे को कुछ नहीं होता है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. ये मैं कभी गुस्सा नहीं होता है. मैं गुस्सा होएगा तो भी मैं जानबूझ के होता है. अदरवाइज आई एम नॉट एंग्री. हाँ स्नेही मैडम. ये स्नेही यस सर. पूछेगी क्या डाउट? सर मुझे 318 आया. 318 आया. पहले गिना था क्या? हाँ सर. हाँ तो नहीं आया तो पूछा क्या? मैं फिर लॉग आउट हो गई थी. हाँ अभी लॉग आउट का नया. सुनो ध्यान से सब लोग, और मेरे को ये करने में मजबूर मत करो रे बाबा. टाइम वेस्ट होता है सबका. एक तो ऑनलाइन है, ऊपर से आप ऐसा करोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज मेरे को दिखता नहीं है. बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है इसको समझा या एक्टिंग कर रहा है. तो ऐसा मत करो. आस्क डायरेक्टली. बी ओपन फॉर लर्निंग. प्रतिज्ञा ले लो, जैसे अभी हेतवी ने लिया वैसे. तो सुनो, पहली बार जब चाय पीने गया ना तो 600 रुपया इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया था. पहली बार जब चाय पीने गया तो 600 इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था और 10,600 उसके पास में छोड़ के आ गया था. डिड आई टेक दिस 600 होम? नो. I gave it back to him and he said, okay, now your 10,600 is with me. Next time when you come, I will give you 6 months ka interest on 10,600. So if you want to calculate with the formula, it is 10,600 into 12% into 6/12. Or if you don't want to do this, then the logic is 10,600 का 6%. 6% क्यों? जो क्षितिज ने समझाया कि सर 12 महीने का 12% है तो 6 महीने का 6% है. वही यहां पे कर रहे हो बाय द वे.
पर जब आप ये कर रहे हो ना तो वो फॉर्मूला के मोहताज हो, और जब आप ये कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट है 12 महीने का 12 तो 6 महीने का 6। और अभी अमाउंट मेरा कितना है इन्वेस्टेड 10,600, इसका 6% यानी कि 636 इंटरेस्ट मिलेगा। समझा या नहीं समझा? एक और बार रिपीट करो ना। थैंक यू क्षितिज। व्हाट इज द डाउट बेटा? एक साल का निकाल के डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं ना? बता, आंसर लेके आ। एक साल का 1272 आएगा, 1272 डिवाइड बाय एक साल का 1 तो राजा वही तो कर रहा है रे, तू कुछ भी बात करता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बस उसका अलग वे भी है, अगर 6% लेके नहीं करना तो। हाँ कर सकता है, तेरे को मारेगा भी। हाँ तो ऐसा बार बार बोलेगा तो मजाक कर रहा हूँ। क्षितिज बोल, क्या बोलता है? सर क्रिश बोल रहा है। हाँ क्रिश बोल। सर मैंने सुना नहीं, मैं जरा बॉटल लेने गया था ना तो मैंने सुना नहीं क्या बोला। You can't go to take bottle, huh? You can't. ओके सर। मैं जाता हूँ बीच में, कभी सुना है पानी पीने गया, फ्रेश होने कभी कभी जाता हूँ, पर मैं सब इधर बाजू आजू बाजू में सब व्यवस्था करके रखता हूँ। पानी का बॉटल अब भी मेरे हाथ में है। सॉरी सर। You can't make me to do this because you went for water. 10,600 पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये 10,600 6 महीने बाद उनके पास है, और ये 10,600 पे आपको 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 10,600 पे 12%, ये तो एक साल का होता है, तो 6 महीने का गिनोगे तो 636 होगा। ये फॉर्मूला यूज किया है। और अगर लॉजिक यूज करते हैं तो लॉजिक ये बोलता है कि 12% 12 महीने का है तो 6 महीने का 6%, तो 10,600 का 6%। अच्छा, अभी कितना अमाउंट मेरा है उसके पास रे, बताओ। हाउ मच मनी दे हैव? मेरा कितना पैसा है? 11,236। यस नो? Yes, sir. यस सर। अभी मैं तीसरी बार जाऊंगा। ये बाय द वे 1 साल हुआ, ये 1 साल कंप्लीट हुआ, ये 3rd ईयर नहीं है, तीसरी बार जा रहा हूं, मतलब 1.5 ईयर के बाद जा रहा हूं। हाउ मच इंटरेस्ट आई विल गेट? टेल मी फटाफट। हाउ मच इंटरेस्ट आई विल गेट? टेल मी फटाफट। 674 पॉइंट समथिंग है। करेक्ट है, 674 लेता हूं मैं, पॉइंट को जाने देता हूं फिलहाल। एवरीबॉडी गेटिंग 674? Yes, sir. हाँ सर। वेरी गुड। अब उसको ऐड करेंगे तो हाउ मच मनी? 11,910 फोर्थ यानी सेकेंड ईयर एंड में इस पे 6%, दैट कम्स टू 715। इसको ऐड किया 12,625। मैं राउंड अप कर रहा हूं। राउंड अप का मतलब डेसिमल के बाद अगर 5 या उससे ज्यादा हुआ तो डेसिमल के पहले का नंबर 1 बढ़ा देता हूं। ये 714.6 कुछ आ रहा है, इसलिए 715 कर दिया। फिर 5th इंस्टॉलमेंट इनटू 6%, दिस कम्स टू 757। इफ आई ऐड दिस it comes to 13,382, ये 5th। और 6th installment 803, if I add this it gives me 14,185। इधर देखो कितना मिल रहा था, 14,049 मिल रहा था स्टेट बैंक में, और इधर कितना मिला? 14,185। क्यों ज्यादा मिला? बोलो बोलो बोलो, क्यों ज्यादा मिला? इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा है। करेक्ट, इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ, फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे। तो फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा फॉर्मूला। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N, ये हमारा फॉर्मूला है। पर अभी मैं पहली बार बता रहा हूं, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब कंपाउंडेड एन्युअली है तब।
अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इंस्टेड ऑफ 12% आप 6% लोगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. एंड Yes, sir. इंस्टेड ऑफ 3 years आप 6 times लोगे। 6 times बोल रहा हूं, 6 years नहीं बोल रहा हूं। 6% जो आप गिनोगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितनी बार करोगे आप? 6 बार करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि 3 साल में आप कितनी बार जाओगे? 6 बार जाएंगे सर। और हर बार वो कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा? 6%, क्योंकि 12% साल का है तो 6 महीने का 6% है। तो अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो 10,000 1 प्लस 12/2 कर दिया मैंने इंटू 100। ये अपॉन 2 क्यों किया? क्योंकि 12 पूरे साल का है और मैं साल में 2 बार जाने वाला हूं, तो 6 महीने का 6% हुआ। और इधर पावर में 3 इंटू 2 कर दिया। 3 years है एंड ईच ईयर मैं 2 बार जाने वाला हूं, तो पूरे 3 साल में 6 बार जाऊंगा मैं। तो 10,000, इसको अगर आप कैलसी पे सॉल्व करोगे तो 0.06 होगा। और बच्चे लोग इसको 0.6 लिख देते हैं। 0.06 है, 6% है, 60% नहीं है, raised to 6। So this is 10,000 1.06 raised to 6। अब आप करो शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट कैसे करोगे? कैलसी पे लो 1.06 इनटू और इक्वल टू, कितना दिख रहा है फिगर? 1.41852। तूने पूरा रेस टू 6 कर लिया है। Yes, sir. 1.6 इंटू इक्वल टू करोगे तो 1.1236 आता है। ये 2 बार काउंट करना है आपको। फिर इक्वल टू 3 टाइम्स, इक्वल टू 4 टाइम्स, इक्वल टू 5 टाइम्स, इक्वल टू 6 टाइम्स। So what I'm getting on calculator is 1.4185। 4 डिजिट पे मैं रुक गया क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है इसके लिए। और अभी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.4185, तो I get 14,185 rupees, which has to be same as this। वाह सर, सेम आया। कभी कभी थोड़ा सा फर्क आ सकता है बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ। यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया था ना, इसके लिए हो सकता है 1 आध 2 रुपए का फर्क आ जाए, तो दैट इज राइट। Any questions anybody has for me? Nobody has any questions? Okay. तो अभी मैं पहले टाइम देख लेता हूं कितना टाइम हो रहा है। What is the time? 10:34. Okay. तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं पूछने जा रहा हूं कि ICICI में क्या करोगे आप? ICICI साल में कितनी बार जाओगे? 4 साल में बार। 4 बार हाँ। जाओगे। तो 3 साल में कितनी बार जाओगे? 12 बार। 12 बार। 1 साल का ब्याज 12% है, तो 3 महीने का ब्याज कितना होगा? 4%। किया ना गड़बड़? 3%। 3%। हाँ 3%। 12% 12 months, 3 months how much? देखो बच्चे लोग, अभी जो कृष्ण ने गड़बड़ किया वही करते हैं। क्वार्टर 4 होते हैं, 4 महीने नहीं होते हैं क्वार्टर में। समझा कृष? यस सर। क्या बोल, जरा रिपीट कर, व्हाट डिड आई से? सर आपने बोला कि क्वार्टर में 4 महीने हो जाए। 4 महीने मार खाएगा, पानी पी के आ वापस। मैंने ये बोला क्वार्टर 4 होते हैं, हर क्वार्टर में 4 महीने नहीं होते हैं। क्वार्टर में 3 ही महीने होते हैं, जैन फेब मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो देयर आर 4 क्वार्टर्स, बट गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं, 4 मंथ गिन लेते हैं। तो 3 मंथ है तो 3% है,
सो 10,000 1 प्लस 12/4 करूं ना? हाँ बोलो ना बोलो? 12/4. ये अपॉन 4 क्यों किया? बिकॉज साल में 4 क्वार्टर्स हैं और पावर में 3 raised to 4 करूंगा. So how much I am going to get is 10,000 into 1.03 raised to 12. Oh, raised to 12 करना पड़ेगा. करो जरा कैलसी पे और बताओ. And I'm going to ask each one of you, okay? Not each one of you. I'm going to ask someone. 1.03 raised to 12. So it's 1.4257. सर मेरा रॉन्ग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है. क्या आ रहा है तेरा? बोल. 1.4679. सॉरी, 1.4679. तूने गिनती में एक और कर लिया, ज्यादा कर लिया. जब तू पहली बार इक्वल टू करता है ना तो 2 काउंट करना है, एक नहीं काउंट करना है. ओके ओके ओके. वापस कर. हाँ. वन 1.4252. नहीं हाँ रे, सर, कहाँ से आ रहा है? 14,257. हाँ, ये आ रहा है और फिर आगे भी है. तो मैंने बोला इधर 4 जीरो है तो मैं 4 डेसिमल लूंगा. तो यहाँ पे 5th डेसिमल 6 है तो मैं 4th डेसिमल को 1 बढ़ा दूंगा. समझा आपको? I will repeat. Because there are 4 zeros here, I am going to take 4 points after decimal. If I see in the calculator, the 5th digit is 6. So I will increase the 4th digit by 1. And I wrote it here 1.4258. And now I will multiply this with 10,000, which will give me 14,258 rupees. तो ये इससे भी ज्यादा आ गया. अब ये जो काम है ना आपको घर पे करना है. ये जो काम है आपको थोड़ा गिनना पड़ेगा पेन पेपर लेके अच्छे से और टैली करिएगा ये फिगर और ये फिगर सही आता है कि नहीं. ठीक है? अच्छा, अभी इधर अगर हम जाएं लास्ट केस में तो क्या होगा? कोई एक जन बताए प्लीज. मंथली में गए हम. मंथ 12/12 into 100 और 3 into 12 हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल. किसी को डाउट इसमें? 12/12 into 100 और पावर में 3 into 12 हो जाएगा. So 10,000 1.01 raised to 36. 1.01 raised to 36. करो कैलसी पे. Sir, 1.43076. So 1.43078. 076 आ रहा है. तो एक्चुअली मैंने राउंड कर दिया था. तो 4 डिजिट राउंड ऑफ करेंगे. तो 14,308. अगर किसी का नहीं आ रहा है तो पूछो बेटा. सबका आया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir.
ये मत करिएगा आप होमवर्क में ये वाला, क्योंकि 36 टाइम्स करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी अगर मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने का, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हाँ, तो मैं क्या बनाता हूं देखो, कंपाउंड का, कंपाउंड में मैंने फॉर्मूला ए की बना दिया, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन एम इंटू 100 रेस टू m into n, where what, where p is equal to principal, r is equal to rate of interest per annum, m is equal to number of times, आप फोन ले जाओ प्लीज, m is equal to number of times compounded in a year. m is number of times compounded in a year. तो जब 6 मंथली था तो m 2 था, क्वार्टरली था तो m 4 था, मंथली था तो m 12 था। समझे कि नहीं? यस सर। m इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया हमने, और इधर लिख लेते हैं m की वैल्यूज क्या हो सकती है। तो एन्युअली कंपाउंडेड m is 1, half yearly compounded m is 2, quarterly compounded m is 4, and monthly compounded m is 12। लिखो ये फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला बाद में लिखो, पहले ये पूरा, ये जो भी लिखना बाकी है वो लिख लो अच्छे से। क्या आपको पढ़ाई करने में मजा आ रहा है? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस। अभी हर लेक्चर में आप यस सर बोलते हो तो सीए हो गए ना, फिर मजा करने का बस। Sir, if I compound in daily, then what is the number of compound in a year? 365। तो उसको कैलसी पे भी करोगे तो बहुत टाइम जाएगा ना। Yes, sir. तो फिर लॉगरिथम को यूज कर सकते हैं उसका आंसर ढूंढने के लिए। सर मतलब ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आ सकता है कि, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जा रहा था। एग्जाम की चिंता क्यों कर रही है? तो पढ़ने की चिंता कर, सीखने की चिंता कर। मान ले मैं बोलूं आएगा तो क्या करेगी? मान ले मैं सर एक्चुअली बोलूं नहीं आएगा तो क्या करेगी? आपको पता चल गया ना डेली में क्या करने का। यस सर। बस उसी को लर्निंग बोलते हैं। ओके सर। मेरा इनविटेशन है आप सभी लोगों से कि जब भी आप पढ़ाई करो तो वो एग्जाम को ध्यान में ही मत रखो, सिर्फ पढ़ो, फुल स्टॉप। Simply learn what you are learning at that time. Keep it as simple as that.
एंड एग्जाम में मार्क्स विल बी बाय डिफॉल्ट यू विल गेट. आप लोग एग्जाम का इतना भूत बना देते हो ना, फिर सब कुछ, योर एंटायर लर्निंग इज ड्रिवन थ्रू एग्जाम ओनली. मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट होता है, बच्चों को सवाल होता है, दैट टीचर्स टेक एग्जाम या स्टूडेंट्स गिव एग्जाम. Which one do you think is the right statement? सर बोथ. नहीं, बहुत आसमान जमीन का फर्क है क्रिश. Students give exam. Students give exam is a lie. Yes, yes. Teachers take exam. जिसने भी बोला ना स्टूडेंट्स गिव एग्जाम इज अ lie, lie. सफेद झूठ. आर यू ईगर टू गिव एग्जाम? जिसने बोला उसने बोल, जवाब दे. Yes, sir. कौन है यस वाली का नाम? Who is that? Hey, नाम बोलो. Snehi. Snehi. Okay. So nothing personal, Snehi, but the point is कि given a choice, students would not like to give exam. How many of students would be approaching कि एग्जाम्पल मुझे अगर 100 में से 80 आए तो लेट मी सी वेयर डिड आई गो रॉन्ग एंड लेट मी चेक माई सेल्फ कि मेरे लर्निंग में क्या गड़बड़ थी. हम लोग तो क्या करेंगे, अपने को 80 आए, दोस्त को पूछेंगे तेरे को कितना आया, उसको 75 आया तो चलो ओके बाय बाय वी आर हैप्पी. अच्छा 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 80 इज मोर देन 75. देन वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट वेयर डिड वी लूज 20 मार्क्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऐसे बना लिया है टीचर टेक एग्जाम, इसलिए जबरदस्ती देना पड़ता है. चलो हो गया लिख के. ये भी लिखो सब, जल्दी लिखो, फास्ट फास्ट. 10:50 होने आया है, घर भी तो जाना है. एक और बार पूछ लेता हूँ मेरी तसल्ली के लिए, क्या आपको पढ़ाई करने में मजा आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Thank you, beta. Ahan, can you do the honors once again, please? Yes, sir. चलो सब लिख के हो गया या कुछ बाकी है? Any screenshots that you want to take? सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना. ये यस सर. हाँ हाँ. मैं आज का वीडियो भी YouTube पे अपलोड करके लिंक भेज दूंगा. अगर किसी का मिस हुआ है तो आप वहां पे भी देख सकते हो. और नेक्स्ट सैटरडे को हमारा लेक्चर होगा. यू नो कि हमने ये जो पहला चैप्टर है वो सबके लिए ओपन रखा है. यू कैन कंसिडर इट एज अ डेमो लेक्चर. सबके लिए ओपन है एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू ज्वाइन दिस May 22 बैच और नॉट. तो फीस वगैरह का डिस्कशन मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर करूंगा. ठीक है, कि कैसे हम फीस का प्लानिंग कर रहे हैं. टिल दैट टाइम यू कैन एंजॉय लर्निंग. तो आप आपके मित्रगण को भी फॉरवर्ड कर सकते हो. दे कैन ऑल्सो हैव अ टेस्ट ऑफ व्हाट CA इज एंड हाउ द लर्निंग इज गोइंग टू हैपन. तो हमारा जो लिंक है आप फॉरवर्ड कर सकते हो अलॉन्ग विद दीज टू वीडियोस. ठीक है. NM में मोस्टली एवरी अदर स्टूडेंट डज CA. तो आप आपके NM के ग्रुप में भी वो फॉरवर्ड कर सकते हो फ्रेंड्स को. ठीक है. एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? सैटरडे को होगा.
मोस्टली वो लेक्चर होगा हमारा 4:30 को। थर्सडे को जो हमारा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन पे मैं एक टेस्ट क्रिएट करूंगा। 20 मार्क्स का टेस्ट होगा और वो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। टेस्ट है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब आपको उसी टाइम पे देना पड़ेगा, फिर बाद में नहीं दे पाओगे। सो ऑनलाइन सारे के सारे बच्चे उसी टाइम पे एग्जाम देंगे, उसके बाद वो एग्जाम बंद हो जाएगा। और ये एग्जाम मैं थर्सडे को रखूंगा। थर्सडे को कब रखूं? शाम को रखूं, मतलब रात को, सॉरी। यस सर, शाम को। 9 PM इज ओके या थोड़ा लेट? 9:30 तक रखो। 9:30 PM ओके। तो फिर 10 PM में रखता हूँ ना, ऐसे ऑड 10 PM को एग्जाम रहेगा। इट विल बी अ 20-minute एग्जाम, जल्दी खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है आपको। ओके। तो 10 PM को एग्जाम होगा। जो बच्चे अपने FIJC में हैं उनको ये अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो नहीं करना है, पर जो बच्चे हमारे FIJC में नहीं हैं उनको आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपके पेरेंट का नाम, उनका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और पेरेंट का मोबाइल नंबर, इतना इन्फो जरा हमें देना है। व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये नंबर पे 9324277778। जैसे ही आप ये व्हाट्सएप करते हैं, हम आपको वो एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। आपको एक SMS आएगा, व्हाट्सएप नहीं आएगा, SMS आएगा। उस पे लिंक मिलेगा आपको। प्ले स्टोर पे जाके हमारा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर वहां पे CAFC May 22 करके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, फ्री है, कार्ट में जाके परचेज करना है सिर्फ। बाकी बच्चे जो अभी FIJC में हैं उनको ये प्रोसेस नहीं करना है। जैसे ही मैं वो प्रोडक्ट बना लेता हूं सॉफ्टवेयर में, मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा, तो उन बच्चों को सिर्फ जाके परचेज करना है। तो उनको अभी FYJC के साथ साथ CA फाउंडेशन का भी मटेरियल टेस्ट वगैरह मिलेगा। इज देयर एनी डाउट इन व्हाट आई एम सेइंग? ये एग्जाम आप तभी दे पाओगे जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है? तो आज ही ये कर लेना, आज ही प्रोडक्ट बना के आपको असाइन कर देंगे। एग्जाम विल बी ऑन थर्सडे। एग्जाम विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाटएवर आई हैव टॉट सो फार, और ये एज अ रूटीन रखेंगे। आई विल टेक एटलीस्ट 3 weeks टू कंप्लीट दिस चैप्टर। आगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट है। तो हर थर्सडे को हमारा एग्जाम रहेगा 10 बजे 20 मिनट का ऑब्जेक्टिव ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है? somebody was asking something I think in between. सर मेरे FIJC से हूँ तो मेरे को भेजना पड़ेगा। किसके? अगर FIJC आप पढ़ा थे है हम लोग के पास, सॉफ्टवेयर है आपके पास तो कुछ नहीं करना है बेटा, पर आपका नाम मुझे चाहिए होगा। काफी बच्चे जो ग्रुप में ऐड हुए हैं ना, उनका नाम नहीं है मेरे पास। सर कल आपको मैंने मैसेज किया। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं ग्रुप में डालूंगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं हो रहा है तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, पर प्लीज कम्युनिकेट ऑन दिस नंबर, नॉट ऑन माय पर्सनल नंबर। फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ टाइम पे। तो ये क्लास का नंबर है, इस पे आप कम्युनिकेट करिएगा, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड अ वीक। सी यू नेक्स्ट सैटरडे को। बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. बाय सर। Bye, sir. बाय बेटा, बाय एवरीबॉडी।